Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are good during the pandemic situation of COVID-19. My name is Muhammad Ahmad Qureshi and I am a student of MS in Project Management of Lahore's School of Professional Studies in University of Lahore. Today, me and my group members are going to discuss and present our final project of Management of Technical Enterprises and our project title is mentioned as Descriptive Analysis of the Existing Kaizen System in Foundries. हमारा ये 4 मेंबर्स का ग्रुप है जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who most merciful and kind. Dear all, first of all, we are very thankful to our respectable teacher, Mr. Dr. Sajid Ali Saab, for giving us a opportunity to work on this project. This is our semester project. Our topic is descriptive analysis of Kaizen in foundries. While working on this project, we have learned a lot, and accordingly critical and teamwork skill have been improved. We are 4 students in this group having a different role. Everyone while working on this project as a team, and my role in this group as a group leader. Before moving forward on project, it is necessary to highlight that the purpose of this activity only for students learning, but not to highlight the efficiency on any organization. We have apologized for any convenience. My name is Muhammad Haroon. I am working in a private organization as a CAD/CAM engineer. I have approximately 5-year experience. Now let's start presentation. Let's move on screen record. This is our group member. Introduction of Kaizen. What is Kaizen? The Japanese word Kaizen, Kai means change and Zen means become good. What is Kaizen? Kaizen means improvements without spending much money, involving everyone from managers to employee and using much common sense. The aspects of Kaizen is that it is ongoing and never ending improvement processes. This is the history of Kaizen. This is a Japanese history. While he improvement in industries, this is the main objectives of Kaizen. In objectives of Kaizen is an approach that should be followed by the company for higher productivity and efficiency in operation. These are steps. This is the scope of Kaizen. The scope of this study is concentrated on foundries which is facing some problem related to long lead times, high noise level, exposure toxic chemicals, floating metal pieces. All these problems are small Kaizen that will increase the sustainability of foundry. The main concern of this project is to highlight the value and advancement of continuous improvement once implied by using Kaizen techniques. This is the beautiful quotes for continuous improvement. Continuous effort, not strength or intelligence, is the key to unlocking our potential. This is the objective of our study. This is a Kaizen umbrella. In this Kaizen umbrella concept that cover most of the uniquely
Japanese management practices that have helped Japanese companies start from zero in 1950s to become world-class competitors in the industry 1980s. This is the main concept of Kaizen umbrella. Next step is Kaizen is a continuous improvement as a PDCA cycle. In this cycle plan, so we have some plan. So after plan we do and check and balance and act. This is the 5S concept. 5S technique used to keep working areas safe and clean. It aim improving working area condition. 5S has 5 major steps. These are following major steps of 5S in Kaizen. Siri as a sort, Seton as a configure, Sasso clean and shine the workplace, Saxo standardize and Shitek sustain. Concept of waste in Kaizen in an industry waste other name is Muda. All known value doing activities done by machine and people are loss of money and time. Muda or waste can be classified into 8 and sometime it called downtime. D for defect, O for overproduction, W for waiting, N for non-utilized resource, T for transportation, I for inventory, M for motion, E for access processing. Step for successful Kaizen implementation. These are successful Kaizen implementation steps: observing integrated total company approach, active teamwork and group work, improvement culture, continuous and endless activities, practicing Kaizen. This is the next step of presentation. I invite Mr. Ahmad Qureshi for this step. Thank you. Well, thank you so much, Haroon, for presenting and describing the first part of this presentation. Now, without wasting of the time, let's start with the second part of the presentation. And the presenter, myself, I will present and describe the second part of this organization. So let's start with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. And without Him, we cannot present anything like this we are going to presenting now. Our final product presentation is the subject of management of technical enterprises. Department is Lahore School of Professional Studies in the University of Lahore under the supervision and instructions of Dr. Ali Sajid. Before starting this presentation, formally I would like to thank to all the faculty members, including all the staff of this university as well as this organization, who support us in every aspect of our this semester. The one and only I would like to thank our great motivational speaker, Dr. Ali Sajid, and he motivates us a lot in our in this semester, and who said that there is no impossible things of in your life, because the word impossible also said I am possible. And also I would like to thank their teaching assistant, Mr. Atif. Thirdly, I would like to thank my all group members, Mr. Haroon, Mr. Afzal and the Namra Mubarak. So let's start formally. As discussed earlier, जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग काइजन सिस्टम इन फाउंडरिंग कंपनीज.
ये बेसिकली एक लॉन्ग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में दो चीज़ें पॉइंट करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर वन इज़ दैट कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड द सेकंड थिंग व्हाट इज़ काइजन सिस्टम। मेरे से पहले हारून इस चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका है कि काइजन सिस्टम क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है। तो शॉर्टली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किसी भी ऐसी चीज़ का एनालिसिस है जिसको आप डिस्क्राइब कर सकें। इसमें आप डाटा ऑर्गेनाइजिंग से लेके आप बाय यूजिंग नंबर्स, बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं एंड देन उसको प्रेजेंटिंग फॉर्म में लेके आते हैं। इस पूरे तनेवर को डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा वो है काइजन सिस्टम। बेसिकली काइजन एक काफ़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा कि काइजन है क्या। काइजन बेसिकली दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द वन इज़ कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द काइजन सिस्टम, एंड काइजन सिस्टम एक चीज़ ये कहता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और सेकंड चीज़ ये कहता है कि इसमें नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट। इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को, इन दो चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, इन दो चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस लेवल पर उनकी बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को हाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताऊं तो काइजन एक जापानीज़ वर्ड है जो कि दो वर्ड का एक वर्ड बनता है। द वन इज़ काई एंड द सेकंड इज़ ज़ेन। काई मीन चेन एंड सेकंड इज़ ज़ेन मीन गुड। इट मीन्स कि इस काइजन का पूरा मतलब है कि गुड चेंज, मतलब आप नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का, इस पूरे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने एम्प्लॉय बिहेवियर और ऑपरेशन बिहेवियर की वजह से डाउनफॉल में आ गई। ये लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने आप को ऊपर लेके गए, लेकिन इन दो वजूहात की बना पर ये डाउनवर्ड पोजीशन पे आ गई, जिसको काइजन आगे जाके मज़ीद डिस्क्राइब करेगा। द सेकंड थिंग इज़ कि करंट इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। काइजन इस चीज़ को भी जो है आगे इम्प्लीमेंट करता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हैं तो फिर वो कंपनीज़ क्यों फेलियर की तरफ जा रही हैं। इस ओवरऑल प्रोजेक्ट का, इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन का मकसद यही है कि इन तीन चीज़ों को हम पर रोशनी डालें, उन चीज़ को उजागर करने की कोशिश करें। एक बेहतरीन कहावत है कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर गुड वर्क टुमारो इज़ टू गुड वर्क टुडे। कि आपने जो काम कल करना है उसकी जो प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्यों ना वो काम, उस काम की प्रिपरेशन इस तरीके से की जाए कि आप वो काम आज ही कर सकें, ताकि विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आपका काम परफॉर्म किया जा सके। अब जो ऑर्गेनाइजेशन हमने सेलेक्ट की है वो फाउंडरिंग कंपनीज़ की ही एक फाउंडरी कंपनी है, उसका नाम है कादरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अब ये कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है कि जैसे कि हम मैकेनिकल और मैनेजमेंट और आईटी और डिफरेंट प्रोस्पेक्टस के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, तो हम लोगों का कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में है। अब हमने जो है, हमारा काम हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में एनालिसिस का होता है। वो हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहा होता है। हमने जो अभी फ़िलहाल एनालिसिस किया है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको स्टार्ट में बताया, वो हमारी कंपनी थी। उस कंपनी का नाम है कैड कास्ट प्राइवेट लिमिटेड। कादरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से ये एक कंपनी है। इस कंपनी में हमने ये एनालिसिस किया है, और हमारा एम इस कंपनी का ये है कि इस कंपनी को ने अपने अंदर काइजन को किस तरह इम्प्लीमेंट किया और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया और अपने प्रोग्रेस लेवल को किस तरह से इंक्रीज़ किया। थोड़ा सा इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि इसके एम्प्लॉयज़ में ये कंपनी जो है सिर्फ पैन पाकिस्तान, लाहौर और कराची में इस टाइम काम कर रही है, और इसके 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 250 के करीब इनमें परमानेंट्स एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि डिप्लोमा होल्डर भी इसमें शामिल हैं। 100 के करीब ऑपरेटर हैं, और इसमें जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस बॉयज़, गार्ड एंड ड्राइवर होते हैं। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन ये सारी वो हैं कि जिनका हमने एनालाइज़ किया, जिनसे हमने इंफॉर्मेशन गैदर की।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन गैदर की। एक प्राइमरी वे है और एक सेकेंडरी वे है। प्राइमरी वे में हमने जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स हैं उनसे हमने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, उनसे कुछ एनालिसिस लिया, उनसे कुछ क्वेश्चन साइन करवाए, जिससे हमें इस कंपनी के बारे में पता लगा कि ये कंपनी पहले क्या थी और क्या इसने इम्प्लीमेंट किया कि जिसकी वजह से ये कंपनी प्रोग्रेस लेवल पे आई। उनमें से कुछ के नाम ये हैं। अब यहाँ पे MHAAAISZ ये लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि इनके नाम कॉन्फिडेंशियल रहें। इसी मकसद की बना पर इन्होंने हमें जो है क्वेश्चन सेंड किए। ये इनके मज़ीद इनके डेजिग्नेशन हैं कि ये किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इनकी एजुकेशन क्या है और किस अहदे पर ये फाइज हैं। सेकेंड चीज़ थी सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा हमने कैसे कलेक्ट किया? सेकेंडरी डाटा हमने कुछ जो है वो एनालिसिस किया, कुछ हमने गूगल सर्च किया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ फाउंडिंग कंपनी से पता लगाया। आगे जो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जैसे इस प्रेजेंटेशन को जो है वो ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है, तो मेंबर वाइज डिवाइड किया गया है। उस मेंबर को 4 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट जो है वो मिस्टर हारून ने प्रेजेंट कर दिया और सेकंड पार्ट जिसको मैं अब प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो मेन मकसद है इसका, कि डेटा एनालिसिस, इंटरप्शन एंड फाइंडिंग। जो हमने डाटा एनालिसिस किया उसकी कोई ना कोई बेस रीज़न थी, कोई ना कोई वजह थी और कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर था जिसकी वजह से हमने एनालिसिस किया। अब एनालिसिस हमने जो सबसे बेहतरीन एक एनालिसिस है जो कि जापानीज़ भी इसको यूज़ करते हैं, अमेरिकन कंपनीज़ भी इसको यूज़ करती हैं, वो है स्वॉट एनालिसिस, जिसमें S स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, W स्टैंड करता है वीकनेस के लिए, O स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड T स्टैंड करता है थ्रेट्स के लिए। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन लेके आना चाहती है वो स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करती है। अमेरिकन्स का ये मानना है कि विदाउट स्वॉट एनालिसिस और आगे इसको प्रोसीजर को देखने के लिए एक और इम्प्लीमेंटेशन है, उस चीज़ को, इन 2 चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस नहीं करती वो ऑर्गेनाइजेशन कभी कामयाब नहीं होती। स्ट्रेंथ में हम क्या चीज़ देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उस कितनी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वो उसकी इतनी कैपेसिटी है कि क्या वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ द मेन पर्पस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। सेकंड, उसके पास रॉ मटेरियल कितना है, एंड द थर्ड कि उसके मैन पावर की कैपेसिटी कितनी है, वर्कर्स की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग उसमें वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये कादरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपना स्वॉट एनालिसिस किया। सेकंड, उन्होंने अपनी वीकनेस देखी। वीकनेस में उन्होंने कुछ पॉइंट देखे हैं जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। पहला लेवल उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट सपोर्ट, सेकंड मैनेजमेंट फॉलोअप, कम्युनिकेशन गैप, लिमिटेड स्किल ऑफ काइजन इवेंट, इनफेक्टिव ट्रेनिंग, एब्सेंस ऑफ मोटिवेशनल स्किल्स। मैनेजमेंट का फॉलोअप नहीं था, मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन गैप नहीं था, सीनियर जूनियर में कम्युनिकेशन नहीं थी। सेकंड, डिपार्टमेंट क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में जो है वो कम्युनिकेशन गैप था, एंड लिमिटेड स्किल ऑफ काइजन इवेंट, इनफेक्टिव ट्रेनिंग सही तरह नहीं दी जा रही थी, ये इनकी वीकनेस थी। एंड द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशनल स्कीम, कि इनको मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी जिससे वो अपने अंदर बेहतरी ला सके, ये इसकी वीकनेस थी। द थर्ड पॉइंट स्वॉट एनालिसिस में आता है अपॉर्चुनिटी, कि कंपनी ने अपॉर्चुनिटीज़ अपनी देखी कि इनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे ये ग्रो अप कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि लॉ, लेबर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट, कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है मार्केट से रिलेटेड लेबर की। उन्होंने फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी ये देखी कि वो जो है एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉय हो, एक्सेस टू हाई टेक्नोलॉजिकल टूल एंड सिस्टम, जैसा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, वो कितना हाई है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो कितना अपॉर्चुनिटी, उन्होंने इस चीज़ को अवेल करने की कोशिश की। एंड हाई इंटरेक्शन ईच अदर, और स्टाफ में, मैनेजमेंट में और जितना भी क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसमें कितना इनका इंटरेक्शन है। एंड द थ्रेट्स इनको क्या हुए, थ्रेट्स इनको 2 तरह के पेश आए कि उसमें इन्होंने देखा कि इनके कंपिटिटर्स कौन है। कंपिटिटर्स को देखते हुए इन्होंने जो है नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन किया, जो कि आपको मैं अभी आगे बताऊँगा। हाई मैन पावर फायरिंग, कि मैन पावर में आपस में कितना इख्तलाफ है और उनमें कितना आपस में जो है वो यकजहती है, कि यहाँ मैन पावर फायरिंग से मुराद थ्रेट्स में इसलिए आता है कि जो आपस में जो इख्तलाफात हैं वो कितने हैं।
अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं स्टार्ट में जो हारून ने भी बताया होगा कि वो इस काइजन को इम्प्लीमेंट करती हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाती हैं। इस फेलियर की क्या वजह है? इस फेलियर की ये वजह है कि एक इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रोसीजर ऐसा भी है जिसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, एंड दैट इज़ कॉल्ड PDCA। ये एक पूरा लाइफ साइकिल है। P स्टैंड फॉर प्लान, D स्टैंड फॉर डू, C स्टैंड फॉर चेक एंड A स्टैंड फॉर एक्शन। प्लान में हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसको चेक करते हैं हमारी एग्जीक्यूशन सही है कि नहीं, एंड एक्शन, उसके बाद जो थ्रेट्स आए हैं या अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं है तो उसके हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई, जब PDCA साइकिल को फॉलो किया कादरी ग्रुप ने, उसके बाद कुछ उन्होंने काइजन्स के इम्प्लीमेंटेशंस देखे। अब वो क्या क्या थी? नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन। इन्होंने देखा कि पहले जो है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं करते थे, उसके बाद एक जो है सिस्टमेटिक वे आ गया। इन्होंने ERP सिस्टम डिज़ाइन कर दिया जो कि एक काइजन की स्लो प्रोग्रेस का हिस्सा था। प्लानिंग में इन्होंने मैनुअल टू सिस्टम किया, जो प्लानिंग करते थे उसको भी सिस्टमेटिक वे में ERP प्लानिंग सिस्टम डेवलप किया। ड्राइंग में मैनुअल टू सिस्टमेटिक, पहले हाथ से बनाई हुई ड्राइंग होती थी, उसके बाद इन्होंने सिस्टमेटिक इसको इस तरीके से किया कि इसमें कैश के ऑपरेशन लेके आए। टेक्नोलॉजी पहले कैलकुलेटर्स थे, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जैसे MGMA या गिग्मा के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद डिज़ाइनिंग मटेरियल, जो मैनुअल डिज़ाइन था वो ये लोग CNC पैटर्न पे इसको लेके आए। उसके बाद सैंड मिक्सिंग के लिए जो है मैनुअल टूल थे। मैनुअल टूल मतलब हाथ से सब कुछ जो है वो मिक्स आउट करना पड़ता था। ये उसको ऑटोमेटेड जो है वो सैंड मिक्सिंग मटेरियल में लेके आए, जिसमें पहले मैनुअल, अगर मोल्डिंग का प्रोसीजर, क्योंकि ये फाउंडरिंग कंपनीज़ हैं तो फाउंडरिंग कंपनीज़ में ज़्यादातर मैकेनिकल वर्क या मशीनरी वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए ये मोल्डिंग को ओमेगा सैंड मिक्सर की बेस पे लेके आए। थर्ड, हैंड मोल्डिंग जो था उसको ऑटोमेटेड मोल्डिंग में लेके आए। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो काइजन के थ्रू इन्होंने इम्प्लीमेंट की। हीट ट्रीटमेंट मैनुअल टू ऑटोमेटिक, पहले मैनुअल तरीके से करते थे जो भट्टी वगैरह में चलाते थे, उसके बाद ये लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल में लेके आए। क्वालिटी चेक को पहले मैनुअल तरीके से होती थी, फिर डिजिटलाइजेशन में लेके आए, जो कि आजकल चल रही है क्वालिटी 4.0 के नाम से डिजिटलाइजेशन हो रही। इवन इन्होंने ये किया कि जो मशीन्स हैं, और मशीन जो है उनको अपने रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस के मुताबिक रखा, मतलब हर जगह नहीं रखा, जहाँ जहाँ मशीन की ज़रूरत थी वहाँ पर रखा। सेकंड, जो चेयर्स हैं उनमें भी इन्होंने व्हील लगा दिए ताकि इसमें भी कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो, इससे भी कोई ना कोई जो है वो बेनिफिट हासिल हो सके। एक बहुत बड़ा एक लीडर गुजरा है कॉफ़ी अनान के नाम से। उसने ये कहा कि हमारा बिगेस्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है आइडिया लेना, इनोवेशन लेके आना, किसी को आइडिया देना। अब उस आइडिया तो हम ले आए, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उसको मुस्तहकम कितना रखना है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल के। और इसको रियलिटी में, जो लोगों की दुनिया है उसको रियलिटी में पेश करना है। एंड पे सिर्फ एक रिज़ल्ट है कि जब स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, PDCA चेक करने के बाद, जब काइजन की टेक्निक अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आया, तो वो रिज़ल्ट क्या था? इस रिज़ल्ट ने जो है 6 मेजर कैटेगरीज बताई, जो कि काइजन ने कहा कि इसको सस्टेनेबल रखेंगे, इसको आप अगर बरकरार रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वो 6 चीज़ें क्या थी? एक थी कम्युनिटी, कि आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपस में। स्किल्स, कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपके स्किल लेवल, आप जो हैं वो हायरिंग भी आपकी स्किल लेवल होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन, कोई वर्कआउट हो रहा है उसमें कितना पार्टिसिपेशन है, अगर नहीं है तो उसको स्लोली प्रोग्रेस करें। इंकरेजमेंट एंड कल्चर, इंकरेजमेंट लोगों में कितनी है, मोटिवेशन कितनी है, और कल्चर वहाँ का कैसा है। एट दी एंड सिर्फ ये है कि स्वॉट एनालिसिस से हम लोगों ने जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इवन के कादरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने भी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड थ्रेट्स अपने फाइंड आउट किए, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने चाहिए। उसके बाद अब मकसद सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पे रुक जाएं, बल्कि इसको आगे भी PDCA साइकिल के थ्रू आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसके बाद वहीं जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। जबकि काइजन कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट ना भी करें, लेकिन अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज भी करते रहें। ये कुछ रिज़ल्ट जो हैं वो आए, जो कि
काइजन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो शो हुए। अगेन ये सारा जो डाटा है, ये सारा एनालिसिस जो है ये सेकेंडरी और प्राइमरी एनालिसिस की बेस पे किया गया है। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो किया गया। इसमें जो रिजल्ट्स आए वो क्वालिटी इम्प्रूव हुई, कस्टमर की पहले सेटिस्फेक्शन नहीं थी लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद डिफेक्ट्स बहुत आते थे, स्वॉट एनालिसिस किया, पीडीसीए किया, पीडीसीए के जो एक्शन प्लान है उसमें देखा, उसके बाद दोबारा उसको स्टैंडर्डाइजेशन उसके सेट किए, फिर एसडीसीए किया, एसडीसीए के बाद उनके डिफेक्ट्स लो हो गए, एंड देन हाई प्रोडक्टिविटी जो कि कंपनी का गोल था। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Afzal and I study in MS Engineering Management first semester. This is my semester project, and first of all I am thankful to respectable teacher Dr. Sajid Ali Saab for giving us good opportunities for working on this project. As our teamwork, now let's start third session of this project presentation. How and where Kaizen is being proposed to be implemented and what's its objective. It is being implemented to FoundrySharp to enhance customer satisfaction by improving quality of product, service and working area as well. It will be executed by eliminating process, waste and effective product, improving working environment, maintaining inventory levels and creating continuous flows based on workers pull instead of push mechanism. Now, how plan of implementing Kaizen based process. The aforementioned plan will be continuously improved and top down goals will be oriented so as to ensure the proper allocation of the resources. Continuous evaluation of metrics, performance, direct involvement in identifying improvement opportunities and developing solution is required to permeate CI into the organization culture. Now this next step, assessment of Kaizen process and challenge. Kaizen assess challenged by factory Kaizen team leaders while involved members identify the problems which occur in the shop floor through brainstorming or by go to Gemba. They use rule of Gemba where when abnormality occurs which is going on to Gemba, gathering data using all five senses, checking machine, materials, failures, reject and unsafe conditions, taking temporary counter measurement on the spot and taking action based on the data collected. Targets are then defined to common cause of the problems. If the problem is related to skill, training, communication, commitment, materials and training system, they also define the scope. The next step is Gemba Kaizen workshop, which involves the analysis of Gemba, its defined problems and possible solutions. Action plans is in then developed where the involved teams, if necessary, is split into smaller groups. Action plan is further linked with some checklists and Gamba photos before and after implementation of change. Thanks. Now I invite to next member for session presentations of this project. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Namra Mubarak. I study in MSc Project Management first semester. This is my semester project. First of all, thanks for our respectable teacher Dr. Sajid Ali Sahab who giving me an opportunity for working on this project for teamwork. Today's our project presentation topic is descriptive analysis of Kaizen system in foundries. I will presenting about its conclusion, recommendation and future research conditions. Conclusion. Kaizen in Quadcast have brought superb
improvement in all branches of QGC. Check the implementation of Kaizen being implemented. Analysis of this respective is done by the collective of quantitative and qualitative documents. Management and employees know about Kaizen and its importance. According to employees, Kaizen is not being implemented as it should be due to this lack of communication, lack of training, knowledge, and education. Kaizen working in both companies, we need Six Sigma various methodologies. Six Sigma is measurement based strategy for process improvement. Six Sigma is consists of 5 phases that are define, measure, analyze, improve, and control. Based on these findings, some of the recommendations are as follows. All branches of QGC should conduct continuous follow-up, provide outgoing support in order to sustainability implementation. Kaizen will only be implemented when employees, workers, management are willing to do it. Company should motivate them to follow the path of continuous improvement. Companies should have training sessions that will educate the workers according to the work. Companies should develop a plan related to Kaizen that will provide a guideline to the Kaizen expert and its group members. After detailed analysis of Kaizen in the both companies, we have some suggestion for the both companies. First of all, by assessing employee attitude, developing continuous Kaizen implementation process. Secondly, the efficiency of Kaizen implementation in this company and others companies. Improving productivity of company, implementing Kaizen methods and data management system. Thanks for this opportunity and platform. If anyone have any question about our presentation, please ask in comments. We will answer you. Thank you.